family. So to begin with, I would first like to greet you on the occasion of New Year. So wish you a very happy New Year 2021. May all your wishes come true in this upcoming year. Uh, Let me start with the Voila's journey so far and the Voila's company's landmarks during last 6 to 7 years. So Voila basically conceptualized for marketing the fashion jewelry segment. So in the beginning, it was thought that precious jewelry was, a segment which was aspired by many of the households. But as the fashion consciousness has increased over the years, there was a requirement in terms of uh, safety and the affordability part. So when we talk about the affordability and the fashion consciousness, which was increasing in the upcoming generation, this thought was developed that we should be creating a brand with good quality, good design options, and most importantly with the affordability part that everyone could be mix and match with his attire, and that's how the concept of Voila was originated. You must be wondering that why it is called fashion jewelry, because in many of the parts or in general language, this is called as a imitation jewelry because it imitates to the precious jewelry segment. But our idea was that since fashion consciousness has been part of everyone's life, so the jewelry should also be changed and bought according to the fashion needs. That's how we decided to term it as a fashion jewelry, and that's how our vision for becoming a branded segment or branded company in fashion jewelry segment was started. If you look around the fashion jewelry market across India, this market is largely dominated by unorganized sector, and that's where we found it as a scope that this unorganized market where the cheap range of jewelry was available across the market, and the quality was also being compromised. We thought that we should be focusing on first on the quality aspect, so that the general fear about the related with the skin related issues with the jewelry could be uh, arrested. And that's how we decided to have the quality raw materials and the processes, so that the final product can be guaranteed with a allergy free or skin friendly products. And second part, the affordability aspect, where, as I mentioned, that since we are into fashion business, so day to day, whether it is day to day use or whether it is, party wearing jewelry, the affordability aspect was also being considered by us while pricing of the products. And that's how we started our journey, first with our online portal, which was voila.com, and then associating ourselves various marketplaces like Amazon, Myntra, Snapdeal, Flipkart over the period of time. To give you, the background of our company, so our company is basically promoted by a IITN, Mr. Vishwas Shringi, who worked with Amazon US for almost 6 to 7 years, and where he learned about the nitty-gritties of retail business. And
since he hailed from India, he came back India and started this venture as a startup, and we got a private equity funding in year 2015 from a Chennai-based private equity firm, and that's how we started, or we decided to expand our operations into offline segment. And 2015 was the year when we launched our first offline store in Rajouri Garden, New Delhi, and that was a basically milestone for us in terms of branded fashion jewelry. There was no other competitor at that time, and that was again gave us a lot of learning in terms of customer behavior, consumer behavior, their expectations, and the display density at the store. And that's how the second format of Voila came into existence, where we decided to open kiosk in atrium of shopping malls. The idea was for launching of the kiosk was to have a smaller space with the higher display density of the products, because as you are aware that fashion jewelry products are smaller in size, and being the fashion article, it is important that the customers are shown as much as products as possible in a limited space. So we decided to go with the kiosk format, and we opened almost 80 kiosks in 2 years of time, and that gave us a good result. And simultaneously our expansion mode on the retail outlets at high street and the shopping malls at various uh, parts of India continued, and currently we are running with around 110 retail touch points. The idea is basically to have a network and to build our position as brand number one brand in fashion jewelry segment to a stronger position, and to keep our manufacturing facilities improved over a period, and the design studio which we have in-house design studio, where we have a capable team of qualified quality conscious and design oriented people who design all the jewelry in house, and we flaunt with with our suppliers who make on our design, and then we supply to our stores. India's largest fashion jewelry brand, again opening for an expansion in all the cities. And for more details, I would like KK Pathak, who is my colleague, who will give you, more insights on the Voila's FOFO model, and then we can, answer all of your queries in that regard. Thanks a lot to all the participants. I will now hand it over to Mr. Pathak, who will take you through over the Voila franchisee opportunity and its basic model. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Prashant, sir. Good afternoon to all. Wish you a very happy new year to all. Basically, प्रशांत सर ने वॉयला के बारे में जो डिस्क्राइब किया है, तो अभी वॉयला ने हम लोगों ने एक फोफो मॉडल लॉन्च किया है, बेसिकली जो कि फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेट होता है। इस मॉडल के अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है लोकेशन वेरिफिकेशन का। तो लोकेशन जो हमारे पास होती है, एक तो रेंटेड होती है और एक ऑन प्रॉपर्टी होती है। सेकेंडली जो लोकेशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, द साइज एंड द लोकेशन। जो साइज है ईबीओ के लिए, जो दो मॉडल्स प्रशांत सर ने बताए हैं, ईबीओ और कियोस्क। ईबीओ एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट है। ईबीओ के लिए जो साइज का पैरामीटर होता है वो 200 स्क्वायर फीट से 500 स्क्वायर फीट के बिटवीन में होता है, और कियोस्क 50 to 100 स्क्वायर फीट के बीच में होता है। दूसरा जो लोकेशन का जो पैरामीटर्स होता है गाइडलाइंस के अंदर, वो हमारे एथनिक जो वुमेन्स एथनिक ब्रांड्स हैं उसके पास में हमारा लोकेशन होना चाहिए, मेन मार्केट में होना चाहिए,
ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द स्टोर मिनिमम हमारी 200 स्क्वायर फीट का जो स्टोर का पैरामीटर है, वहां पर कम से कम मतलब मार्केट के अंदर 200 फीट की एक रोड होनी चाहिए, जिसमें कि पार्किंग की फैसिलिटी एंड अदर जो वॉक-इन्स है वो नॉर्मली रहें। तो बेसिकली आपका जो फिजिकल सर्वे भी हम लोग कराते हैं प्रॉपर्टी का, जब हम लोगों का फर्स्ट आप लोग इमेजेस शेयर करते हैं लोकेशन की, उसके बाद में हमारी तरफ से फिजिकल सर्वे करने के लिए सर्वेयर जाते हैं और वो कंपनी के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसके बाद में फाइनल अप्रूवल ब्रांड की तरफ से आता है। सेकंड स्टेप होता है, अगर मान लीजिए आपकी लोकेशन अप्रूव हो जाती है, सेकंड स्टेप होता है हमारा LOI, विच इज द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट साइन होने के बाद में आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहला आता है हमारा ब्रांड लाइसेंसिंग फी में। EBO के लिए जो हमारी ब्रांड लाइसेंसिंग फी होती है वो होती है 2 लाख रुपीस की। कियोस्क के लिए जो ब्रांड लाइसेंसिंग फी होती है वो होती है 1 लाख रुपीस की। ये वन टाइम पेमेंट होता है, लेकिन ये नॉन रिफंडेबल होता है। उसके बाद में जो अपना इन्वेस्टमेंट आता है वो आता है फिक्सचर फर्नीचर के अंदर। तो फिक्सर फर्नीचर का जो एस्टिमेट होता है वो हमारा 2000 पर स्क्वायर फीट से 4000 पर स्क्वायर फीट का रहता है। इसमें ब्रांड आपको लेआउट प्रोवाइड करता है शॉप का, वो आप लोकली किसी भी वेंडर के थ्रू या फिर वोयला के वेंडर के थ्रू वो कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं। इसमें बेसिकली कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपकी शॉप है, उसका फ्लोरिंग का, सीलिंग का ये अगर काम रेडी है तो वो 2000 से 3000 पर स्क्वायर फीट के बीच में आता है। अगर फ्लोरिंग, सीलिंग और वॉल्स का भी वर्क कराना है तो वो 4000 स्क्वायर फीट के अराउंड जाता है। उसके बाद में अपना आता है इन्वेंट्री, जो प्रोडक्ट्स हमको डिस्प्ले करने के लिए चाहिए होते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए जो प्रोडक्ट्स का क्राइटेरिया होता है वो होता है 100 स्क्वायर फीट के स्टोर में हमें 800 यूनिट्स चाहिए होती है। 800 यूनिट्स मतलब 800 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए, जिनकी की ऑन एन एवरेज कॉस्ट होती है 4 लाख रुपीस की। नेक्स्ट स्टेप है आईटी जो आपके एसेट्स होते हैं, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, EDC मशीन। अगर ये सब चीजें आपके पास पहले से अवेलेबल हैं तो कंपनी अपना सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर सकती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट वन है इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट होता है, वो होता है डिस्प्ले मटेरियल, जिसको कि हम लोग प्रॉप्स भी कहते हैं, जिसमें कि हम लोगों को ज्वेलरी को डिस्प्ले करना होता है। तो उसका जो कॉस्टिंग आती है वो आती है 50,000 पर 100 स्क्वायर फीट में। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया जो कि जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद में एक रेंटल डिपॉजिट का है। अगर आपने रेंट रेंट पे प्रॉपर्टी है तो आपका जो भी रेंटल है वो आपको डिपॉजिट कराना होगा। उसके बाद में अब आ जाते हैं आपके मार्जिन वाले पार्ट पर। तो इसमें जो मार्जिन रहता है वो आपका रहता है 40%। जो भी वोयला की प्राइस होगी उसका 60% आपका कॉस्ट रहेगा, 40% आपका मार्जिन रहता है। ये मार्जिन आपका फिक्स रहता है। मान लीजिए कि फर्दर किसी भी प्रोडक्ट पर वोयला फर्दर डिस्काउंट देती है तो वो पूरा का पूरा डिस्काउंट वोयला बेयर करती है, आपको फिक्स मार्जिन 40% मिलता है। तो वो क्रेडिट नोट भी जनरेट उसमें हम लोगों का एक ऑप्शन होता है। इसके बाद में आपकी जो इन्वेंट्री है आप उसको साल में 2 बार करेक्शन करवा सकते हैं। करेक्शन से मतलब जो नॉन सेलिंग इन्वेंट्री है उसको आप फ्रेश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा साल में 2 बार एंड ऑफ सीजन सेल लगता है, जुलाई अगस्त में और दिसंबर जनवरी में। तो ये 6 मंथ की साइकिल होती है। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट एंड ऑफ सीजन सेल तक टोटल वोयला से 10 लाख रुपीस की इन्वेंट्री परचेज की है, तो आप उस टोटल परचेज का 20% मतलब 10 लाख का 2 लाख रुपए का माल आप कंपनी को पुराना माल वापस करके फ्रेश इन्वेंट्री ले सकते हैं। सेम साइकिल रिपीट होती है सेकंड यूएसएस के बाद। तो फर्स्ट यूएसएस के बाद और सेकंड यूएसएस तक आपने जितनी भी इन्वेंट्री परचेज की है उसका 20% फिर से आप करेक्शन करवा सकते हैं। इसमें बाद में जो मार्केटिंग सपोर्ट होता है, VM सपोर्ट होता है, ऑपरेशन सपोर्ट होता है, ये सारा का सारा सपोर्ट आपको ब्रांड की तरफ से मिलता है। आप जब कंपनी के साथ में LOI साइन करेंगे तो ये पूरी की पूरी डिटेल की आपके एरिया के लिए, आपकी शॉप के लिए क्या-क्या मार्केटिंग एक्टिविटीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो आपको पूरा का पूरा कैलेंडर मिलता है ईयरली बेसिस का। इसके साथ में जो हमारा डे टू डे ऑपरेशन सपोर्ट होता है वो आपको पूरा प्रोवाइड होता है, जिससे कि आपको ऑब्जर्वेशन करने में बहुत इजी रहता है।
स्टोर पे ऐसा नहीं कि आपको ऑल द टाइम आपको प्रेजेंट रहना पड़े। तो हम लोग पूरा ऑपरेशन सपोर्ट जो हमारी ऑप्शन एक्टिविटीज हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं। इसके साथ में आपको टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी लैपटॉप में या प्रिंटर में या सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमारे एग्जीक्यूटिव हमेशा उनको अटेंड करते हैं और वो इश्यूज रिजॉल्व करते हैं। इसके बाद में जो ब्रांड का पैकेजिंग मटेरियल होगा, जिसमें कि हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स देते हैं, जो कि बेसिकली आपका कैरी बैग, बॉक्सेस, प्रिंट रोल, कार्ड्स, पॉलिथीन, ये सारा का सारा आपको इन्वेंट्री के साथ में ही मिलेगा। जब भी आप इन्वेंट्री जितनी का परचेज करेंगे उसके हिसाब से जितना भी पैकेजिंग मटेरियल जरूरी होगा वो आपको उसके साथ में आ जाएगा। इसके बाद में जो आप स्टाफ रखेंगे, स्टाफ का जो हायरिंग का प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा वोयला के एचआर की तरफ से होता है। उसमें जो ट्रेनिंग होगी स्टाफ की, वीएम की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, वो पूरा का पूरा वोयला कंडक्ट कराता है। स्टाफ की सैलरी का पार्ट फ्रेंचाइजी का होता है, लेकिन बाकी की जो सारी चीजें होती हैं वो वोयला की तरफ से होती है। उसके बाद में आ जाते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट पे। तो जो कुरियर चार्जेस होते हैं हम लोगों के, जो ब्रांड आपको फ्रेंचाइजी स्टोर पे कुछ भी भेजेगा उसका कुरियर चार्जेस वोयला का पार्ट होता है। अगर आपकी तरफ से, स्टोर की तरफ से ब्रांड को कुछ भी आता है तो उसका कुरियर चार्जेस फ्रेंचाइजी को पे करना होता है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं। इसमें एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स पे 1 ईयर की वारंटी देते हैं। तो कस्टमर्स जब भी आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो 1 ईयर की वारंटी उनको ऑटोमेटिकली हर प्रोडक्ट पे मिलती है, जिसमें कि हम लोग प्लेटिंग का, कलर आउट होने का, ये सब कवर करते हैं पैरामीटर्स। तो उसके अंदर कोई भी कस्टमर आपके पास आता है जो कि कंप्लेन लेकर के आता है, तो आप ब्रांड को वो प्रोडक्ट देंगे तो ब्रांड उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करा के देता है, जो भी उसमें रिपेयरिंग का पार्ट होता है। तो बेसिकली ये चीजें हैं जो कि एक फ्रेंचाइजी मॉडल